Hello and welcome to this special edition of Agenda. What is the picture that comes to your mind when you think about a government school? Is it depleting walls, falling off infrastructure, people, students creating ruckus? Well, let's give you a glimpse. This is what a public school, a government school in Delhi looks like. It's air conditioned, it's got a theatre, it's got projectors, it's got speakers and all these swanky desks which even we didn't have in our time. We come to you on a day when the government schools in the national capital have outperformed the private ones. That means that the result that has come out of the class 10th and 12th examination is of passing percentage in government schools is much more, in fact 9% more than that of private schools. It's a huge story that talks about not just the dedication of teachers, government, but the vigor with which students are studying as well. I'm joined by the Deputy Chief Minister, but also the Education Minister today, Manish Sisodia. I'm joined by toppers here, more girls, very happy to see that, their teachers and their families as well. I firstly want to congratulate everybody over here. Sir, outstanding performance. It is not every day that you hear that a government school has outperformed. Government schools which are already dealing with so many issues, them to actually defeat in a way private schools. What do you think is the biggest takeaway? I think my war is not to defeat private schools because मेरे private schools भी मेरे ही schools हैं अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मेरी वॉर ये है कि जब तक हर बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश नहीं खड़ा हो सकता मैं वहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं उसमें प्राइवेट स्कूल भी है गवर्नमेंट स्कूल भी है ऑफ कोर्स एक सिंड्रोम है सोसाइटी में हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं क्यों भेजना चाहते हो क्योंकि वहां पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के लिए वो स्टेटस सिंबल भी है पर ज़्यादातर लोगों के लिए मजबूरी है वो 1-2 लाख रुपए फीस देते हैं और इसलिए देते हैं क्योंकि उनके मन में ये डर है कि अगर हमने अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा तो कहीं उसका कैरियर ना खराब हो जाए उस कॉन्फिडेंस को मैं वापस लाना चाहता हूँ हम सब गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं टीचर्स बैठे हैं मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं आप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मेरे फादर खुद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे मैं उस कॉन्फिडेंस को वापस लाना चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल की हालत जानबूझ के खराब की गई देश में ताकि कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और बाकी बच्चों को बहुत सेलेक्टेड तरीके से अच्छी शिक्षा कुछ को अच्छी शिक्षा देके बाकी को बहुत जेनरिक शिक्षा दे दी जाए मेरा मानना है कि सारे बच्चों का हक क्वालिटी एजुकेशन पे है मेरी कोशिश भी यही है प्राइवेट स्कूल को जहां जहां जो फैसिलिटी चाहिए मैंने दी है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत खराब थी वहां बजट बढ़ाने से लेके टीचर्स को ट्रेन करने से लेके उनको फिनलैंड या कैम्ब्रिज में एक्सपोजर देने से लेके हर वो चीज मैं करने को तैयार हूं जो इन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब लोगों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए जरूरी है I want to come to those trainings exercises that you've carried out for teachers. We'll talk to them as well. But first, I want to go to the students here. I have these young girls. And how much was your percentage this time? What was your result? 93%. She's one of the toppers, Harshita. Harshita. Yes, ma'am. Harshita, 93%. Many congratulations. क्या करना चाहती हैं आप आगे? मैम IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बनेगी आप? क्या क्यों बनना चाहती हैं IAS ऑफिसर? मैम देश की सेवा करने के लिए। अच्छा, आप कहाँ से? कितना परसेंटेज आया और क्या पढ़े? 94.8। ये ज्योति हैं, ये भी टॉपर हैं। एंड मुझे भी IAS ऑफिसर ही बनना है। IAS ऑफिसर ही बनना है। Yes. What about you? You tell me. Where are you from? How much have you scored? I am from Zenith Mahal, सर्वोदय कन्या विद्यालय, and my percentage is 87.7%. All right, brilliant. ये आपकी मम्मी है यहाँ पर? मैम आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं मुझे बताइए? 10th तक पढ़ी आप? अभी तो कैमरे से पहले आप मुझे 5th बोल रही थी अब आप कैमरा आते ही 10th बोल रही हैं। आपको क्या लगता है कि काफ़ी अच्छा एक पर्पस अचीव हुआ है कि आपकी लड़की आज इस समय क्या ड्रीम है आपका क्या बनना चाहती है? I want to become a doctor. You want to become a doctor. आपकी लड़की आज बोल रही है डॉक्टर बनना चाहती है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं क्या थॉट्स हैं आपके? मैं तो यही चाहती हूँ बन जाए अच्छे डॉक्टर बने देश की सेवा करे All right. I'm also joined by some students here. You are somebody who could not top. आप 2 मार्क्स से पीछे रह गए और आपके फादर भी यहाँ पर हैं मुझे बताएं ये गम है इस बात का और इज इट नाइस? अच्छा लग रहा है 2 नंबर का मैं लेकिन मेरे दोस्त ने तो लेके आया कोई बात नहीं पिछली बार तो 11th क्लास में था लेकिन इस बार 2 नंबर से ही लेकिन हुआ है अच्छा है रिजल्ट यही अच्छा है आपके दोस्त जिन्होंने आपको 2 नंबर से हराया है? यही मेरा दोस्त हाँ तो आपको बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि आप जीत गए? मैम नंबर तो उनके भी बहुत बढ़िया हैं कोई कम तो है नहीं 2-3 नंबर तो बस वो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं उससे। अच्छा आप दोनों का मुझे बताइए क्या ड्रीम है क्या बनना चाहते हैं आगे आप लोग? मैम डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियर।
आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपके फादर हैं यहाँ पर। सर आपकी तो आंखों में एकदम आंसू आ गए हैं कि लड़के ने आपका नाम इतना रोशन करा है, आज टीवी में बैठ के बात कर रहा है। आप क्या करते हैं मुझे बताइए। मैं प्रिंटिंग का काम है मेरा। अच्छा। बुक प्रिंटिंग का काम। हाँ, तो आप प्रिंट करते हैं और वो पढ़ते हैं। जी। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? ग्रेजुएशन किया है। आपने ग्रेजुएशन करा है। जी। All right, I'm joined by several other students here as well, but I'm just saying it is amazing how students today in government schools can dream about becoming doctors, engineers, civil servants, all of that. I also have some teachers. I want to go to them first. Ritu, आप अभी मुझे बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले. What do you think? Because I think a teacher will understand the pulse of the student the most. What is the reason behind this outstanding performance? Actually, the reason behind this is, I must say, it is the motivation which I have received from our minister. He has done a lot in the education sector. From अभी वो बैठे हुए तो आप अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मुझे एक्चुअल बताइए, what is the one reason? I have come from a public school. I joined the government. I was missing a spark, and that spark this government has given us. Okay. He has conducted so many trainings, whether it is a learning manager program or mentor teacher program. We have got so much exposure. Now we are thinking, कि yeah, as a teacher, teaching this system means education system has also lot to do. So we establish a better connect with the students. They are my principal and all. So many other. I mean, whole teaching. Very thank you speech to everyone. Let me ask you guys one question. आप सब यहाँ पर teachers बैठे हुए हैं. This trend that has come out, what does it speak? Is it because students now, despite not having as many as an environment as a public school, but they're still doing better? That means students in government schools are driven to do better, and so are the teachers. I give you one example. We have a legal literacy club in our school, and one judge from Karkaduma court, he comes to give the lecture. After 2 lectures, when he was departing from the school, he came to me and he asked me, "Sir, can I apply for my son's admission here?" Oh, lovely. So that is the change what That's sir a was sitting talking. judge. Yep, sitting judge. Mr. Sharma is there. Okay. Still he comes to our school, and one day he said, "Sir, can I apply for my son's admission?" So that is the change what we are trying to create that, and what sir was talking. That when nobody will feel something as such that why should I go to government school? Everyone should get that, and apart it will happen when we will come up to that level what the people are comparing to us in the society. And what I feel that is because of the commitment of our teacher. Can you believe this man can teach 8 hours every day? And आप जो ये एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाते हैं, इसका एक्स्ट्रा पे मिलता है आपको? नो मैम, नहीं मिलता है। बस एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एज अ टीचर जब मैं ज्वाइन किया DOE और मैंने जाके करावल नगर के स्कूल को देखा, तो इन दैट केस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गया था, और जो सीन था वो मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक था। और सर्टेनली मतलब मेरे लिए गुड लक भी था कि मैं RPV के इंटरफेस को क्लियर कर पाया और वहाँ पर आ पाया, और जो मेरे पास था मैं इन बच्चों को दे पाया। बस मैंने एक कमिटमेंट किया था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट इंसिडेंट ये था कि मैं जब मेडिकल के लिए गया था तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप गवर्नमेंट टीचर तो बन गए हो पर पढ़ा लेना। तो मुझे उस मेंटालिटी के बारे में पता नहीं था कि मतलब एक्चुअली में है क्या, ये ऐसा क्यों इन्होंने कमेंट किया। बट जब मैं यहाँ पे पहुंचा और मैंने करावल नगर को देखा तो मैं समझ में आया मेरे को कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि वहाँ पे क्लास स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। तो मुझे खुद को फील हुआ कि शायद you were telling me that his performance has been teaching 8 periods every day. His performance is last year 91 was the minimum score in chemistry in school. Minimum means I proposed him, sir, कि मैं आपके पीछे वाले पीरियड्स रिड्यूस कर देता हूँ टाइम टेबल में, आप सीनियर क्लासेस ले रहे हो। बट ही सेड वेरी कैजुअली, नो सर मैं उनको ही पढ़ा लूंगा। मैम आप लोग मुझे बताएं, इतने सालों में हमने जो बात करी है, टीचर स्ट्राइक पर जा रहे हैं, वैकेंसीज बहुत सारी हैं, हाउ डू यू गाइस फाइट दिस सेंटिमेंट? एंड आई वाज टॉकिंग टू यू प्रीतु अबाउट दिस अर्लियर आल्सो, दैट यू वर सेइंग दैट द टेम्परामेंट चेंज हैज बीन दैट द टीचर्स शुड ओनली टीच, other things should take. Actually, we should be evaluated only for teaching activities. We are deputed, we have been provided job only to teach the students. Then these responsibilities by which we are bogged down should be taken away from us, so that we will be responsible only for our children, for whom we are working. So these things now, like Aadhaar and this is the bank difference, and I want to ask you about this, sir, that you compare a private school to a public school, and you're right, there is no comparison really, but if you compare the results and then you compare the difference, a teacher in a private school is responsible only for that one class. One class in a private school will have maximum 20 to 30 students. Here they have 70 students. They have to teach them. Also there are several other activities apart from teaching that they have to perform. Actually ये बड़ा चैलेंज था जब मैं सरकार में आया था। तो मतलब I also have dreams for education. मतलब मेरा मानना है कि देश तभी खड़ा होगा जब एजुकेशन खड़ी होगी। तो
उस पर काम करना शुरू किया तो देखा कि 16 लाख बच्चे जिन कंडीशंस में पढ़ रहे हैं, लार्जली उनमें से बच्चे ऐसे, आप भी तो 70 की बात कर रही हो, मेरे एक क्लास में 134 बच्चे थे। भगवान को भी टीचर बना के बिठा दो, नहीं पढ़ा सकता। सो मेरा पहला काम था इस चीज को ठीक करना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्लासरूम्स बनवाने शुरू किए। 8000 नए क्लासरूम्स बन गए हैं, आप इसी स्कूल में देखेंगे तो खूब सारे क्लासरूम्स बने हैं। उसके बाद 10,000 क्लासरूम्स और बनवा रहा हूँ। अब इन क्लासरूम्स में पढ़ाने के लिए मुझे टीचर्स चाहिए। Remember, you've had some confrontation with the LG as well over this. वो कन्फ्रंटेशन है, देखिए उनका जो धर्म है वो करते रहे, मेरा धर्म ये है। एडहॉक टीचर्स भी ला रहे हैं, गेस्ट टीचर्स ला रहे हैं, हम परमानेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे यू सी, मेरा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है ये बच्ची है छोटी सी जिसका भी हम बात कर रहे थे, हर्षिता। कल इसके टॉप करने की न्यूज आई, मैंने इनका नंबर पता करके इनके घर फोन किया, इनकी मम्मी से मेरी बात हुई। प्राइवेट स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल के हैं जो एक तरह से एजुकेशन का प्राइवेट स्कूल्स फॉर ग्रांटेड देखिए, प्राइवेट स्कूल के साथ में प्रिविलेज है कि बहुत चूजी हैं। वो 35 बच्चे क्लास में बिठाने के बाद कह सकते हैं कि हम और नहीं लेंगे, मैं नहीं कह सकता। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के वक्त माता पिता की फाइनेंशियल स्थिति, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के वक्त पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रख रही हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति जो हार्डली अपनी रोजी रोटी कमा पाता है, दिन भर मेहनत करके सिर्फ बच्चों को खाना खिला दे, उन पे पढ़ने पे कहां से खर्च करेगा? उसके लिए कौन चिंता करेगा? सरकार अगर उसके लिए चिंता नहीं करेगी, वहां मैं खड़ा होता हूं आके। वहां उनके पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे मेहनत कर लें। Lord, all those students, teachers, government's efforts who are behind this, we'll talk more about that on the other side of the short break.